Good morning, students. Once again, your assistant teacher, Pradeep Shukla here. Students, now today we'll understand what do you mean by resources and development. The first chapter of geography. It's very interesting. First, we'll understand what do you mean by resources. As we know, resources, स्रोत, anything which is available in the environment to satisfy human needs are known as resources. Moving ahead, students, ये हमने हमेशा डेफिनेशन देखा है, पर हम आज डेफिनेशन को थोड़ा विस्तार से देखेंगे. विस्तार से मतलब जैसे आपने देखा है रिसोर्स, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास अवेलेबल है, दैट इज नोन एज रिसोर्स. देयर आर आल्सो वेरियस टाइप्स. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स. एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, and also which is, if you see in the book page, first page, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Means the resource, the development of resource, the resource which are available in the environment to satisfy the human needs without harming the human needs, without harming the needs of the human in future, that is known as human resource, that is known as resource. Moving ahead, students, we'll also understand, as we know, हमेशा हमने देखा है, as we know, resource are the free gift of nature, but that is not truly correct. As we know, it is the free gift of nature, but it's very important to utilize the resource in a proper manner. अगर हम resources को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, सही से utilize नहीं करेंगे, तो students, as we know, भविष्य में ये resources खत्म भी हो सकते हैं. And that's why it is very important to classify the resource, to survey the resource, to estimate the resource, and to understand the resource in a very systematic and a proper manner. Moving ahead, students, first we'll understand the classification of resource. See, resources are classified on the various bases. First basis is on the basis of their origin. Basis of the origin means like we have two types of resource, biotic and abiotic resource. Biotic resource, as we know, anything which is available in the environment which have a life, that is known as biotic resource. Abiotic resource, anything which is in the environment which does not have a life, like metals, stones, these are all the abiotic resource. Moving ahead, students, will also understand what do you mean by renewable and non-renewable resource. Resources which can be renewed after a particular time. For example, like solar energy, like wind energy, like water, like forest. These are all the we can say renewable resources, because this can be renewed after some time. जैसे आपने पेड़ काटा या आपने वाटर ज़्यादा यूज़ किया, तो अगले बारिश में या अगले मौसम में हमें फिर वाटर अवेलेबल रहता है, तो दैट इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स the resources which are available in the environment, which can be renewed after a long time, that are known as non-renewable resources. Especially like fossil fuels, metals, these are all the resources which can be obtained, पर इन्हें पैदा होने में या उत्पन्न होने में काफ़ी समय लगता है. That is millions of years, hundreds of years. इससे पता चलता है कि भाई ये जो रिसोर्स है, that should be used in a very proper and a very systematic manner. और इसलिए आज आपने देखा है कहीं भी जैसे कोल अवेलेबल है या किसी प्रकार का कोई मेटल अवेलेबल है, that has been undertaken by the government, क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है कि इन रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना, सिस्टमैटिक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. अगर इन्हें सही से यूटिलाइज नहीं किया गया तो भविष्य में ये हमारे पास उपलब्ध नहीं रहेंगे. दैट इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. नेक्स्ट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मीन्स बहुत सारे ऐसे रिसोर्स भी हैं हमारे यहाँ जो पर्टिकुलरली किसी आदमी के हैं या किसी नेशंस के हैं या कम्युनिटी के हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी फर्स्ट वन इंडिविजुअल रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय अस, like our cars, TV, fridge, anything like our farmers के जो farms वगैरह होते हैं, that is known as individual resources, because these are the resources which are owned by the individual. इसमें भी हमें बहुत सतर्कता रखनी होती है. आपने देखा है लैंड आपका है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, पर आपने देखा है हमेशा सरकार हमें हर बात पर चेताते रहती है या बताते रहती है कि कैसे हमें रिसोर्सेज का सही यूटिलाइज करना है, कैसे रिसोर्सेज को
बचाकर उसमें से ज़्यादा आउटपुट लेना है। एंड दैट इज़ वाई क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल रिसोर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इंडिविजुअल है इस रिसोर्सेज पर डिपेंड रह सके। मूविंग अहेड विल अंडरस्टैंड कम्युनिटी रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द community, like children parks, like gardens, like roads, like railways. These are all the community resource. It's very important. जैसे आपने देखा है कहीं भी आप चिल्ड्रन पार्क वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है डोंट प्लग फ्लावर्स या डोंट स्पॉइल द प्लेस, गंदगी ना करिए, डस्ट जो भी कचरा वगैरह है वो डस्टबिन में फेंकिए। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। Moving ahead, we'll understand what do you mean by national resources. The resources which are owned by the country, that are known as national resources. Like water bodies, कुछ ऐसे distance होता है water bodies का, that is owned by the Indian government. That is known as national resource. Then we have international resource. The resources which are owned internationally. जिसका किसी का पर्टिकुलर कंट्री का उस पर दबदबा नहीं होता है, दैट इज ओन्ड बाय द होल वर्ल्ड। लाइक ऐसे कुछ ओशंस भी हैं, ऐसे कुछ वाटर बॉडीज भी हैं, दैट इज ओन्ड बाय द होल वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, वी विल आल्सो अंडरस्टैंड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट वी हैव पोटेंशियल रिसोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स व्हिच आर अवेलेबल इन अ कंट्री। Like in Rajasthan, we have wind resource. Like in Gujarat also we have wind resource. We also have energy resources like solar energy. It's बताने का ये मतलब है कि इन सब रिसोर्सेज में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है जिसका इस्तेमाल करके हम एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, जो जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। And now we also have a resource which can be generated with the help of sunlight, and that's why it is known as potential resource. मतलब इससे पोटेंशियल तो है, पर हम शायद कम जानकारी के अभाव की वजह से या हमारे पास वो तकनीक ना उपलब्ध होने की वजह से टेक्निकल नो हाउ, हम इसलिए उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दैट इज नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स। मूविंग अहेड वी अंडरस्टैंड डेवलप्ड रिसोर्स, द रिसोर्सेज which are surveyed, we can say quantified and have a good quality are known as developed resource. It's very important to use this resource in a very systematic and a proper manner. Moving ahead, we have stocks. Stock means like there are different resources. There are different, we can say, energy resources. There are different, we can say, material which are available in the environment to satisfy the human needs. For example, water. As we know student, water is also, if you see in the book, it is a composition of hydrogen and oxygen, but we cannot separate it because of the technical know-how. बताने का ये मतलब है कि water can be used for drinking purposes as well as for various other purposes which can be used for a better prospect, which can be used for a broader या better prospect. That is known as stock. Moving ahead, we have reserves. It's very important. Reserve means are the subset of the stock which can be used with the help of technical know-how. Like we have also water resource. Sorry. We have rivers which can be used in a proper manner. जैसे हम आजकल रिवर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डैम्स वगैरह बनाए गए टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देयर आल्सो बहुत सारे छोटे रिवर्स भी है जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए या डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिजर्व्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। एज वी नो टुडे रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑन अ वेरी वाइटल स्केल, वेरी लार्ज स्केल, and that's why it is very important to use the resources in a proper manner. Why to use the resources in proper manner? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बच्चों आप भी हमें लगता है कि बहुत सारे resources हैं, बहुत सारे resource हैं, बहुत सारे exhaustible, non exhaustible, biotic, abiotic, potential resource हैं, तो हमें इतनी दिक्कत क्यों है? It's very important. क्यों? क्योंकि resources को हमें सही से utilize करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि as we know human nature, लोग मानव का नेचर होता है,
वो हमेशा रिसोर्सेज को इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट करते हैं, बड़े पैमाने पर यूज करते हैं कि हम उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा अगर आप पॉइंट देखते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिसका खाली कुछ लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं, सब लोग की पहुंच वहां तक नहीं है। कुछ लोगों की राजनीतिक पहुंच है, कुछ लोग पहले से बहुत अमीर हैं, सिर्फ वही वो बिजनेस करते हैं। जैसे कुछ पर्टिकुलर कंपनीज भी हैं जो सिर्फ स्टील में डील करती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में डील करती हैं, तो बाकी लोगों को वो रॉ मटेरियल उनसे खरीदना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आप देखेंगे तो मोनोपोली भी है, एक तरह से एकाधिकार, ताकि बाकी लोगों को रिसोर्सेज सही से इस्तेमाल करने के लिए ना मिले। तीसरा अगर हम रीजन देखते हैं रिसोर्सेज के लिए, आपने देखा है कि रिसोर्सेज को यूज करने की वजह से आज आप देख लें ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, जो हमारा ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है, इससे गर्मी और बढ़ रही है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ओनली बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द रिसोर्स इन अ वेरी appropriate and a very proper manner. Moving ahead, student will also understand it's very important. Like it's very important to use the resource in a very proper manner. अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, गर्मी बहुत बढ़ेगी, अकस्मात बारिश होगी, अकस्मात ठंडी बढ़ जाएगी, अकस्मात गर्मी बढ़ जाएगी, मतलब मौसम में एक अजीब तरह का बदलाव आएगा अगर हम रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसलिए आज के ज़माने में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। आपने देखा है आजकल आपने देखा है कि डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, पर आज अगर आपको कोई भी रोड्स बनाने हैं, रेलवेज बनाना है, तो आपको पर्यावरण विभाग से परमिशन लेनी होती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, परमिशन हम कब लेते हैं, क्यों लेना होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं सरकार द्वारा कि वो इन सब चीज़ों पे सर्वे करें, इन सब चीज़ों पे मूल्यांकन करें कि भाई अगर यहाँ डेवलपमेंट किया जाता है तो इससे हमारे एनवायरनमेंट को कितना फर्क पड़ेगा, और अगर एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता भी है तो कितने समय के लिए पड़ेगा, कितने मात्रा में पड़ेगा, और भविष्य में इसकी क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट्स? इफ यू सी इन द बुक में अगर आप पेज नंबर 3 पे देखते हैं, वी हैव अ डेफिनेशन मींस development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। वही मैंने बात आपको बताई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, पर ये हमें ध्यान देना है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, मतलब हमें पर्यावरण को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं वर्तमान में या भविष्य में, जो भी हमारी प्रगति है या जो भी हमारा डेवलपमेंट है या जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, उसको किसी प्रकार से कोई भी क्षति या कोई भी फर्क न पड़े। एंड दैट इज नोन एज सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट कैन कम इन एग्जाम ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू टू मार्क दैट डेफिनेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के आप देख सकते हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन रहता ही है कि व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ शॉर्ट नोट, या कहीं ना कहीं एक जरूर क्वेश्चन रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो प्लीज मार्क दैट। मूविंग अहेड, विल अंडरस्टैंड रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। लाइक 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील की राजधानी है, वहां पर कम से कम 100 देशों ने मिलकर 100 देशों का एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आगे से हम जो भी काम करेंगे या जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे या जो भी हम रिसोर्सेज को यूज करेंगे, दैट शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एनवायरनमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और इसी चीज को हम आज तक फॉलो करते चले आ रहे हैं। अभी रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसमें कम से कम 100 देशों ने मिलकर एक वीकेंड से एक मुद्दे पर हस्ताक्षर किया था कि भविष्य में हम सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट को ही ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। और उसी में उन्होंने एक एजेंडा 21
एक प्रिंसिपल वी कैन से एक सिद्धांत का निर्माण किया था कि भविष्य में अब जो भी देश ये समिट से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो करेंगे, पर भविष्य में वो इस चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा हम ये देखेंगे व्हाट डू द एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या, ये लोग एजेंडा 21 पे इतना फोकस क्यों कर रहे थे बच्चों? एजेंडा 21 इट्स लाइक वी कैन से एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है, इसलिए बनाया गया था कि अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो इस बात को वो जरूर ध्यान देगी कि डेवलपमेंट से ज़्यादा उन्हें इस बात पर ध्यान देना है कि किसी सी तरह से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में उस देश के खिलाफ जो बाकी देश के लोग हैं वो कार्रवाई के लिए कह सकते हैं या प्रस्तावित कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी अंडरस्टैंड रिसोर्स प्लान। लाइक व्हाट इज रिसोर्स प्लान? लाइक रिसोर्स को प्लान करना बहुत जरूरी है। एज भी अभी हमने पहले देखा था, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स। वी हैव बायोटिक, वी हैव अबायोटिक रिसोर्स, वी हैव रिन्यूएबल रिसोर्स, वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वी हैव पोटेंशियल रिसोर्स, वी हैव डेवलप्ड रिसोर्स, वी हैव स्टॉक्स, we have reserves, we have national resource, we have international resource, we have community resource, we also have individual resource. इन resources को सही से इस्तेमाल करने के लिए it's very important to have a proper planning। और proper planning की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया था, जैसे राजस्थान we can say desert areas है, वहाँ पे तेज हवाएं बहुत बहती है, तो that is a potential, that is a also option for wind energy। वहाँ गर्मी भी बहुत होती है, धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है कंपेयर टू अदर रीजन्स, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए रिसोर्स प्लानिंग आज के ज़माने में, आज के भविष्य में बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट तो होना ही है, पर डेवलपमेंट के साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो भी बराबर मेंटेन रहे, ताकि भविष्य में भी अगर हम किसी प्रकार का डेवलपमेंट करते हैं तो रिसोर्सेज की जरूरत तो पड़ेगी ही। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द रिसोर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। आगे बढ़ते हैं। लाइक रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इंडिया में एज वी नो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वाटर बॉडीज ज़्यादा हैं, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट्स हैं, बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो इन सब रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनका एक प्रॉपर प्लानिंग किया जाए, एक प्रॉपर सर्वे किया जाए, एक प्रॉपर अनुमान एस्टिमेशन किया जाए, कि ताकि इन रिसोर्सेज को हम कितने बड़े पैमाने पर या कितने लेवल पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भारत में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत में वी हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्स, पर प्रॉब्लम यही है कि हम उसे सही से यूटिलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। दूसरा अगर हम देखते हैं मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अगर हम कोई भी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारे देश को होना चाहिए। अगर देश को नहीं हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग। और इसलिए आपने देखा है कि आज जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, चाहे कोल माइंस ले लीजिए या जहाँ पर मेटल्स वगैरह मिलते हैं, आपने देखा है वहाँ पर आपने देखा है दैट इज अंडरटेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है कि इन रिसोर्सेज को हमें ज़रूरत अभी कितनी है, कितना हमें एक्सट्रैक्ट करना है और कितना हमें भविष्य के लिए रखना है, ताकि भविष्य में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन। लाइक किसी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं हो सकता कि हर जगह सब प्रकार के रिसोर्सेज मिले, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये एस्टिमेट करना है कि कहाँ पर कौन से रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है और उसका इस्तेमाल हम दूसरी जगह पर कैसे कर सकते हैं, और दूसरी जगह से जो रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल हम इस जगह पर कैसे कर सकते हैं, इसका हमें प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगर हम देखते हैं, लाइक इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ कॉलेज रिवर दैट वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन ट्रेडर्स। यस, अगर हम इतिहास में भी देखते हैं
भारत में जैसे आपने देखा है अंग्रेज आए, पोर्चुगीज आए, मुगल्स आए। क्यों आए भारत में? क्योंकि उन्हें पता था कि भारत हर तरह से परिपूर्ण है, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे वी कैन से पोटेंशियल रिसोर्स हो, चाहे बायोटिक रिसोर्स हो, चाहे अबायोटिक रिसोर्स हो, चाहे वाटर बॉडीज हो, हर चीज़ भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। और इसलिए आपने देखा है कि बाहर के लोग भी सिर्फ इसलिए भारत में आ रहे थे क्योंकि उन्हें यहाँ पर हर प्रकार के रिसोर्सेज मिलते थे, चाहे स्पीशीज हो या वी कैन से स्पाइसीज हो, हर प्रकार के गरम मसाले हो, हर प्रकार की चीज़ हमारे देश में उपलब्ध थी। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज किया जाए। आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्व मीन्स कैसे रिसोर्सेज का बचाव करें, कैसे उसका सही से इस्तेमाल करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम रिसोर्स को कंजर्व नहीं करते हैं, सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे घर में ही आपने देखा है हमेशा कहा जाता है, या आप स्कूल ही आते हैं आपको हमेशा बुरा लगता है स्टूडेंट्स कि सर हमेशा कहते हैं कि भैया लाइट बंद करके जाइए, आपके क्लास की फैन चालू की। कभी कभी देखा है आपने असेंबली में भी सर अनाउंस करते हैं, क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि रिसोर्सेज को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सेव एनर्जी, सेव लाइफ। जैसे आपने देखा है टीवी पे ऐड आते रहता है कि अगर आप भैया घर में नहीं हैं तो लाइट वगैरह स्विच ऑफ कर दीजिए, पानी मत वेस्ट करिए, अगर आप कहीं सिग्नल पर खड़े हैं, जेब्रा सिग्नल लगा हुआ है, पब्लिक क्रॉस कर रही है जेब्रा क्रॉसिंग से, तो आपका क्या नियम है, गाड़ी का स्विच बंद कर दीजिए ताकि जो पेट्रोल या डीजल आप जो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एग्जॉस्ट आपने पैसा दिया है, आपने ही खरीदा है, पर फिर भी सरकार की कहती है क्योंकि भविष्य में आपके जेब में पैसे तो रहेंगे पर ये रिसोर्स नहीं होंगे, इसलिए ये ज़रूरी है कि इन रिसोर्सेज को सही से कंजर्व किया जाए, सही से इनका बचाव किया जाए। अगर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं भविष्य में ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। दूसरी बात आपने देखा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसोर्सेज को सही से यूज़ किया जाए। अगर सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भविष्य में ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं, और कहीं पर भी आपको लगता है कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या अननेसेसरली यूज हो रहा है या इसका फायदा देश को नहीं हो रहा है, तो आपके इसके खिलाफ कह सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में ही आपको जाके ये सब रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। मूविंग अहेड, नाउ वी सी पेज नंबर 5। लाइक एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्सेज for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhiji's philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminar report was made by the Brundtland Commission in 1987. This report shows the concept of sustainable development, our common future. Like there are also various books, there are also various authors which focus on the resource, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये पर्यावरण नहीं होगा, भाई हर जगह फैन नहीं हो सकती, आप कहीं बाहर भी बैठते हैं, शाम के समय आप देख रहे हैं आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है, क्यों हो रहा है सब चीज़ें? क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसलिए भविष्य में कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज जाके खत्म हो सकते हैं और हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द रिसोर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. Moving ahead students, tomorrow we'll again see what do you mean by land resource. लैंड रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार के लैंड होते हैं, आपने देखा है फैलो लैंड है, बैरन लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई द लैंड अकॉर्डिंगली, ताकि इसका इस्तेमाल हम सही तरीके से कर सकें। जैसे आज भी हम कहते हैं पॉपुलेशन कम करिए, कंट्रोल द पॉपुलेशन, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ज़मीन पर या अर्थ पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, ज़्यादा भार पड़ रहा है, पर हम कहीं देखते हैं रास्ते में जंगल वंगल दिख गया, अरे यार इतनी ज़मीन खाली है, फिर भी कहा जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल करो, क्योंकि ये ज़मीन या जो भी लैंड वगैरह या जंगल से या फॉरेस्ट खाली है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेनफॉल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस, दैट इज मेंटेनिंग फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। अगर फॉरेस्ट वगैरह नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला जाएगा, और जब गर्मी वगैरह होगी तो कहीं ना कहीं हमें पानी की कमी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द रिसोर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं
कि आज हमने क्या क्या देखा है। फर्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। दूसरा, रिसोर्स मीन्स एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स विच इज we can say economically feasible, technically acceptable, we can say, and technically accessible and culturally feasible. That's it's very important. दूसरा, we have also seen what do you mean by types of resource. जैसे हमने देखा बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, exhaustible resource, inexhaustible resource या कह सकते हैं renewable और non renewable. Then we have seen about individual resource, national resource, community resource and international resource. Also we have seen about potential resource, developed resource, stocks and reserves. दूसरा हमने देखा what do you mean by sustainable development. Third, we have seen the 1992 Earth Summit which have been initiated in Rio de Janeiro, Brazil. उसके बाद हमने देखा resource planning. Last हमने देखा कि also we have seen about strategic planning of the resources. उसके बाद हमने लास्ट में देखा था अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना आप लोग करिएगा. कल के वीडियो में हम देखेंगे लैंड रिसोर्स, लैंड यूज ऑफ पैटर्न और सॉइल एज अ रिसोर्स. और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.